ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਫਾ ਦੱਸਿਆ? 666। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? शाहिद भाई वो PDF जो नीचे जो एक एरो सा लगा होता है, उस एरो पे क्लिक करें और वहाँ पर पेज नंबर लिख दें, डायरेक्ट आ जाएगा जी। 11 या साइड पे जो पेज नंबर ओपन हो गए तो इस तरह यहाँ पे है मेरे ख्याल, यहाँ पे लिख, हाँ यहाँ पर 11-16 लिख दें। 1 2 3 6 یہ تیرے 21 آ گیا وے، تیرے 21 آ گیا، کوئی نہیں، اس طرح ڈھونڈ لیتے ہیں یا اس طرح کریں، ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، ڈبل پیج ہوں گے وہاں پر، آپ اس کا لکھ لیں 1116 کا آدھا لکھیں۔ نہیں میں پہنچ گیا مفتی صاحب وہاں پہ، 500 کے اس طرح لکھیں، 504 لکھ لیں، 504 لکھ لیں تو وہاں پر آ جائے گا، اس کا آدھا ہوگا، ڈبل پیجز ہے نا۔ نو 923 ہے نا، تو یہاں پر لکھ لیں 504 لکھ لیں۔ اب دیکھیں کون سا صفحہ کھلا ہے؟ 984۔ ہاں بس اس پہ آگے چلے جائیں، 984 لکھا ہوا ہے تو اس سے آگے چلے جائیں، پیجز قریب ہے پھر۔ اچھا یہ پھر سے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے دوبارہ سے؟ ارے اسی طرح ڈھونڈ لیتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اس پہ لکھا کیا مجھے یہ بتاؤ پہلے، لکھا کیا ہے؟ بھائی کنجرو یا ڈبل ٹیپ کرو، رپورٹر نہ مارو گدے ہو۔ یہ ساری اچھا مفتی صاحب اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اتنی دیر میں ساتھ میں نا ویڈیو بھی چلا کے منیمائز کرتا ہوں، یہاں پہ یہ تو صفحہ ڈھونڈتے ہیں نا، تو اتنی دیر میں یہ بھی کیوں انہیں علیہ السلام علیہ السلام اپنے ہتھی پہ لکھ دے ہو، کیوں وہ دی گل کوٹ اینڈ کوٹ پہ کر دے ہو؟ اوے اپنے ہتھی تسی لکھ کے دیتا علیہ السلام، او وڈیو آ گئے ہو ختم نبوت دے ٹھیکیدارو، جے تواڈے چ انی غیرت ہے نا تے جا کے پہلا پتر قومی اسمبلی دی کاروائی تبدیل کرا۔ کتی ماں دیو بچیو، دلیو بھین نو لول تہاڈی نو گشتی ماں دیو، تہاڈیاں بڈھیاں ماواں دی پھودی ماراں میں، تہاڈی دی بونڈ ماراں تہاڈی بڈھی۔ عمران خان نے بابے دی تلیم پیش، بابے دی تلیم پیش کرن آ گیا جے سور مسئلے لاؤ۔ عمران خان اگر ایڈا غیرت ایمانی دا مظاہرہ کر دیو نا پہ کہ جس ویلے مرزا قادیانی دا پیروکار آ کے لے اسلام آکھے تے تسی آندے ہو اسی موتر لے شلوار آکھاں دے، تے اگر تسی ایڈے بے گیا وہی دیکھیں پہلا جا کے اسمبلی چ ریک کرو تے انہاں نوں کہو ایتھے موتر لے شلوار لکھو، عامر رضی صاحب جتھے اپنی ہتھی لے اسلام لکھا جی ایتھے موتر لے شلوار لکھو۔ ٹپ ٹپ کرو، رپورٹ کی جا رہی ہے، ٹپ ٹپ کرو۔ میں پیا کہنا جا کے اوتھے موتر لے شلوار لکھاؤ،
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਛਾਪੀ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਕੰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੇ اور لانتیا ਇਹ ਤੂੰ ਝੂਲੇ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ये नबी चला गया था, ये नबी का आशिक कहता है कि मैं नबी का आशिक हूँ, तेरे बीवी का आशिक। तेरी बीवी का आशिक मैं हूँ पीट स्कैनिंग। अच्छा जी, लो जी सफा आ गया है। भाई थोड़ी सी रिवाइंड, शाहिद भाई थोड़ी सी रिवाइंड करेंगे। क्या उसने कहा था कि हाथ से लिख के दिया तुम लोगों ने सलातो सलाम? हमने लिख के दिया, किसी मुसलमान ने सलातो सलाम लिख के दिया? क्या उसने कहा? जरा दोबारा नहीं जी, उसने कहा है जगह जगह पर लिखा हुआ है, जगह जगह पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जगह तो वो दिखाएगा, वो जगह जगह तो वो जहाँ से वो दिखाएगा वो दिखाएगा, लेकिन पहले उसने बात क्या किया? अपने हाथ से लिख के दिया। हमने कहाँ लिख के दिया वो बताए जरा। अच्छा जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कहता है? शुरू से पढ़ते हैं। जहाज के मतलब जो वजह है यहाँ हुक्म पढ़ लिया। अच्छा नहीं, आपने सुना दिया एक जो नीचे होली स्पिरिट साहब आए हैं, उनको उठाएं प्लीज। शायद भाई होली स्पिरिट साहब आए हैं, मैं जगह देता हूं, मैं वैसे भी काम कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यही कहने आया था, मैं सिर्फ यही कहा था, जरा एक मिनट दोबारा वो मैं गौर से सुनना चाहता हूँ। क्या उसने कहा है जगह जगह हमने लिख के दिया है? हमने कहाँ पर लिख के दिया? डॉक्टर साहब आप इधर आए, आप इधर नहीं बैठ सकते। सॉरी डॉक्टर साहब, सॉरी माजरत, मैं आपको कॉल पे उठ लेता हूँ इस जगह। यार रुक जो, मॉडिनेटर की कर दे फिर, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर क्या बात हो रही है? डॉक्टर साहब, यहाँ पर अमर हंजीर ने जो अल्फाज कहे हैं ना कि आप लोगों ने जगह जगह पर लिख के दिया मूतर शलवार मूतर शलवार। मैं आपको बता देता हूँ, कौमी असेंबली की कार्रवाई के दौरान एक जगह पर वो हरामजादा जो था ना, नासिर मुर्तद, उसने कहा, ये अल्फाज इस्तेमाल किए उसने, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो सफा नंबर यहाँ पे बताया गया है जनाब, नहीं, मैं मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट आप रुके। ये था जी 22 अगस्त वाले दिन, थर्सडे को, उसने सुबह 10:30 बजे ये लफ्ज कहे, और उस वक्त बात हो रही थी जहाद की। और ये कौमी असेंबली की कार्रवाई में सफा नंबर 1116 पर लिखा हुआ है। ये अगर देख लें जी, ये जिहाद के मतलब जो फरमाया। नहीं, एक मिनट, आप 1116 डॉक्टर साहब, ये पेज मेरे सामने। जी अच्छा, जी, ये पेज वही खुला। जनाब, ये वाकया ऐसे हुआ कि इस मुर्तद ने, इससे सवाल करते हुए पूछा गया, तो यहां पर एक ब्रेक आ गई थी। फिर यहां पर पुलिस वाला अंदर आया, उलमा खड़े हो गए, और वो इस हाथ से घसीटता हुआ इस कुत्ते को बाहर ले गया डाइस से। आप देखेंगे कि जो ही इसने ये कहा, उसके बाद मजमून खत्म हो रहा है, हालांकि वो सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उस दिन उसने इसकी पगड़ी उतार दी वहां पर। उसने कहा, अगर तुम्हारी जुबान से ये इसने 2-3 मरतबा कहा है वहां, और कहता है जी स्लिप ऑफ टंग है, हमें आदत हो गई है। इस बात को चैलेंज किया गया था कि ये लानती अल्फाज जो एक झूठे मुर्तद के लिए हैं, इनको निकाल दिया जाए। लेकिन जो एक्यूरेसी ऑफ स्क्रिप्ट है, उसको कायम रखने के लिए उन्होंने इसे नहीं निकाला। ਭੈਣ ਯੱਕਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਕੁੱਟਾਂ। कौन कह रहे थे? अच्छा जी, डॉक्टर साहब, आमिर खंजीर आमिर खंजीर का साला आया हुआ था, उसने कहा कि उसने गाली तो नहीं देते, नहीं मुफ्ती साहब, ये गाली नहीं देते, गाली नहीं ये देते, ये जो भी बयान कर रहा था ना, नहीं ये मिर्जा खंजीर जी पेश किया था मेरे को। इसका मैं आपको रेफरेंस निकाल के दूंगा, हाई कोर्ट के एक जजमेंट में इसकी तरफ रेफरेंस है।
इस बात को ये लानतुल्लाह अलैह जो है मिर्जा मुर्तद, और तुम तो मिर्जाई तो खुद इस पर लानत भेजते हैं, इसको झूठा कहते हैं, सुबह शाम मिर्जा गुलाम कादियानी मुर्तद को झूठा कहते हैं। इसमें तो ये जो है, मुझे पता नहीं था ये जो आमिर नजीर एक मुर्तद है और खबीस की औलाद है। मतलब ये लोग और ये जो शैतानी है इसके साथ, वो तो मिर्जाई है खैर पैदाइशी। और बात यह है कि ये 2-3 दफा उसने कहा और उसे रोक दिया गया और कौमी असेंबली की कार्रवाई स्टैटिक हो गई। ये सवाल आप मौलाना अल्लाह वसाया से पूछ लें। मौलाना अल्लाह वसाया उधर ना सिर्फ मौजूद थे, बल्कि मुझे उम्मीद है कि उन्हें बिल्कुल ठीक से याद होगा कि 22 अगस्त वाले दिन सुबह 10:30 बजे 15 मिनट की ब्रेक क्यों आई थी। आप देखेंगे कि इसके फौरन बाद याहिया बुख्तियार जो हैं उन्होंने उसी सवाल को कंटिन्यू करने की कोशिश की है, और लेकिन जब उसने कहा कि मैंने ये पढ़ दिया है तो उसको घसीटते हुए ले गए। उस वक्त जो पंजाब का आईजी था वो एक मुसलमान था। वो बार बार कहता था कि ये तुम क्या करते हो, इन हरामियों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ बात है कि आप इस मुर्तद को इजाजत दें कि आके नेशनल असेंबली जो इस्लाम की मजलिस शूरा उसके सामने बकवास करे। तो आपको 2-3 जो जगह लिखा है उसका हमें इल्म है, वो एक्यूरेसी ऑफ स्क्रिप्ट के लिए लिखा है कि जो स्क्रिप्ट शाया किया गया है उसको किसी तरह भी तब्दील ना किया जाए। और अगर आप बैकग्राउंड पढ़ना चाहते हैं तो अगले हिस्सों में पढ़ लें, आपको एक जगह पर बैकग्राउंड में लिखा हुआ मिलेगा कि इनमें ब्रेक्स हैं। ब्रेक ये नहीं कि बोलने की ब्रेक है या ट्रांसक्रिप्शन की ब्रेक है, ऐसी कुछ नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन 100% एक्यूरेट है इसमें, वरना ये जो इसने लफ्ज कहे थे ना 22 अगस्त को सुबह 10:30 बजे, इस पर जो हंगामा हुआ था ना, इसकी बोटियां उड़ा दी जाती इन 5 आदमियों की, बाहर जो लोग खड़े थे। उस दिन इनको बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर घर भेजा गया। डॉक्टर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, शाहिद भाई है जरा थले बकवास करता पिया है, एनू म्यूट करना है, एनू की करना है, मैं कुछ नहीं करता पिया क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁਸਤਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ। हमें सब पता है ये बातें, हमसे छुपी हुई नहीं है ये बातें। और दूसरी बात, कौमी असेंबली ने जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट वो बनाया है उसमें इसको ब्लैक आउट करने की उन्होंने कहा, लेकिन फिर उन्हें बताया गया जब कनाडा की अदालत ने कहा कि ब्लैक आउट नहीं होगा क्योंकि इसकी इजाजत नहीं थी। ये मिर्ज़ई जो हैं और ये जो मिर्ज़इयों का यार हैं ये लोग, इस जैसे बड़े खबीस फिरते हैं, नामर नज़ीर जैसे, और ये शैतानी लानती जो है एक तवाइफ की औलाद है ये, और इस जैसे बहुत फिरते हैं यहां पर, हमें इसका बिल्कुल इल्म है। ये कानूनी तौर पर स्क्रिप्ट को, और देखें उसके फौरन बाद अगले सफे पर आप देख लें, इसने वो सलातो सलाम जो कुत्ते पर पड़ा था नहीं पड़ा। इसके बाद चंद सफों के बाद फिर ये बात शुरू हो जाती है, और इसका बाद में उसने बड़ा इसको एहतियात किया, उसने मिर्जे मुर्तद का नाम जहां लेना बनता था ना वो नाम भी नहीं लिया, और 3-4 सफों के बाद आपने देखा कि मजबूरी में उसने कहा, फिर उसने मिर्जा गुलाम अहमद भी नहीं उसको कहा, उसने कहा मिर्जा साहब बस। ये दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि मिर्ज़ई जो है, हकीकत कह रही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिर्जा साहब। हाँ, मैंने इस कार्रवाई का एक लफ्ज पढ़ा है शायद भाई, मुझसे ज्यादा शायद ही किसी ने इस कार्रवाई को पढ़ा हो। सईद साहब, सईद होली स्पिरिट साहब जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ जिस वक्त आपने फरमाया था ना कि मौलवी हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब यहाँ पर मौजूद हाँ, उनसे पूछें।
मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनसे वक्त लेके यहाँ पर लाइव आके उनसे मैं उस वक्त टेलीफोन पे बात करूँ जिस वक्त मैं यहाँ पर खुद लाइव पूछे उनसे, और यहाँ पर बाकायदा जो है वो सबके सामने जब मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा और उनसे यही सवाल मैं पूछूंगा कि इस वक्त जो है अलैहिस्सलाम जब कहा गया था तो उस वक्त क्या हुआ था। हाँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है मौलाना अल्लाह फसाया की, वो ज़िया रसूल के चैनल पर एक दफा आए थे जी, और उन्होंने कहा था, जहां तक मुझे याद है, मतलब वैसे मतन बयान कर रहा हूं, कि जब ये ऐसा करने की कोशिश करता था तमाम उलमा बेंचों से खड़े हो जाते थे जी। और चूंकि हजरत के साथ तो मेरा जो है वो एक तो ईमानी ताल्लुक भी है, ईमानी रिश्ता भी है, ख़त्म नबूवत का रिश्ता भी है, और बाकी भी कई जो है उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। जब भी क्योंकि हजरत इस साल नहीं आए, इस साल जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है उस पर नहीं है क्योंकि उनका बीमार है, मतलब उनकी सेहत ठीक नहीं है, मुझे इल्म है इस बात का। वो काफी बूढ़े भी हो गए हैं, लेकिन जिस वक्त ये कार्रवाई हुई थी वो जवान थे, लेकिन वो असेंबली के मेंबर नहीं थे जी, वो हेल्प कर रहे थे कमेटी की जी। इसी तरह मौलाना तकी उस्मानी भी शायद असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्हें हेल्प के लिए बुलाया गया था। तो चंद एक उलमा वहां पर ऐसे मौजूद थे जो आज मतलब जैसे मौलाना अल्लाह वसाया आज भी जिंदा है। ये देखें, इनके ईमान तो इनमें है ही नहीं है। ये जो आमिर नजीर, मैं तो इससे बहुत ऑफेंड कर दिया इसने। और बात तो हजरत बात तो तब करे ना इन्होंने कुछ किया हो, ये हाँ, जो नहीं देखें, हमसे पूछे ना, हम तो असेंबली कार्रवाई की जो है हमने तो उन लोगों से सुनी और उनके से डिस्कस किया जो वहां मौजूद थे। और मैं आपको बताऊं, मेरे सके वालिद साहब इस कार्रवाई में मौजूद थे, मेरे अपने वालिद साहब इस कार्रवाई में मौजूद थे। बिल्कुल, एक तो उस्ताद होता है और एक होता है अपना वालिद। उस्ताद भी वालिद की तरह होता है। हाँ, नहीं, वो इस कार्रवाई, वो असेंबली के मेंबर नहीं थे जी, लेकिन उनकी जो उस वक्त पोजीशन थी उसकी वजह से वो गैलरी में बैठ के सुनते थे, देखते थे सब कुछ। और खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहता तफसील। मेरे खानदान के बहुत सारे लोग वहां, मेरे खानदान में मेरे रिश्तेदारों में से 2 या 3 MNA तो मैं जानता हूं उस वक्त थे जब ये कार्रवाई हो रही थी, और वो वहां मौजूद थे, वो नेशनल असेंबली के मेंबर थे वहां। लेकिन और बहुत सारे लोग थे जो गैलरी में बैठ के सुनते थे। ये लोग आ जाते हैं, उठ के मुंह उठाकर हमें बातें सुनाते हैं। तो वहां पर जब इसने ये लफ्ज कहे थे, इनकी रोजी रोटी का मसला लगा हुआ है जो है वहां पर इटली में और आगे पीछे ना, ये क्या करें बेचारे, उनके बलबोते पे नहीं, कोई नहीं मुफ्ती साहब, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੇ, ठीक है? नहीं बात ये है नहीं बैठे थे जड़ी गल करनी है बात जी। देखिए, ये बात इसकी अहमियत समझिए। ये कादियानियों का एजेंट है आमिर नजीर, और ये शैतानी तो कादियानी है। ये आपने गौर नहीं किया, ये तफरीकम बैन अल मोमिनीन का एजेंडा लेकर आए हैं। इन्हें कहा गया है कि अब तुम वहाबी और सुन्नी का झगड़ा खड़ा कर दो जाकर। आमिर नजीर, तुम बहुत हरामजादे हो, कुत्ती की औलाद हो तुम। नहीं, और ये जो शैतान है ना, ये जो मर्ज़ई तुमने रखे हुए हैं, खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा इन बातों पर। अब ये तफरीकम बैन अल मोमिनीन का ड्रामा खेलना चाहते हैं। ओ जी, ये तो वहाबियों ने कहा था, खबीस की औलाद, तुझे ये नहीं पता कि किसी वहाबी का फतवा मुसलमान पर वाजिब भी नहीं है। हर मसलक का फतवा सिर्फ ऑप्शनल है। और ये मज़ाहिब का मामूली सा स्टूडेंट भी जानता है। तुम अवाम को धोखा दे रहे हो। ये इतनी गलीज हरकत, ये दोनों को आप इनकी पहचान करवा दें, ये मुसलमान नहीं है, ये कादियानियों के एजेंट हैं और ये उनका एजेंडा पुश कर रहे हैं। इन्होंने तफरीकम बैन अल मोमिनीन एक ऑप्शनल बात पर शुरू कर दी है,
اور تم اگر ایسا کرو گے ہم تم پر نہ صرف لعنت بھیجیں گے جہاں تک ہم ہو سکے گا. تمہاری یہ ویڈیو میں نے پاکستان کے اور جو تمہارا بھائی کام کرتا ہے نا شاید کاؤنسلر ہے وہ تو کل پوچھ لیں تھوڑے دنوں بعد. تم کیا سمجھتے ہو پاکستان میں بغیرت نہیں رہتے ہیں. پاکستان میں قادیانی چند قادیانیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہم اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں لیکن پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان سے بہتر مسلمان دنیا میں موجود نہیں. اور تم یہ تفریقم بین المومنین کہ 30 سال پہلے کسی نے اہل حدیث نے کہا تھا لعنتی کے بچے اہل حدیث کا فتویٰ آپشنل ہے وہ تو واجب میں بھی نہیں آتا ہے. یہ چھوڑیں ان کو. دوسری بات سعید ولی اسپرٹ صاحب ان کے پاس جو پپو ملک بیٹھتا ہے جو مرزا انجینئر کا وہ تو مرزائی ہے. دیکھیں وہ قادیانی ہے پپو ملک اس کی بیوی بھی قادیانی ہے. کیا بات کرتے ہیں. وہ ساؤتھ ہال کی ایک دن مسجد دکھا رہا تھا جس کا نام بیت النور ہے. اس مرزواڑے کو وہ 3 بیڈ روم کا ایک ہاؤس تھا اسکول کے سامنے ہے میں نے دیکھا ہوا ہے اس لیے میں نے پہچان لیا. اس کا تو مرزائیوں کو خود بڑی مشکل سے پتا لگتا ہے کہ وہ ہے کہاں پر. آپ کو براڈ وے کی طرف جاتے ہوئے 2-3 موڑ مڑنے پڑتے ہیں. وہاں پر ایک پارک ہے اس کے پیچھے ہے وہ. اس کو ڈھونڈنے کے لیے تو مرزائی بھی سارا دن گھومتے رہتے ہیں جو نیا آتا ہے. اس کو کیسے پتا تھا وہ مرزواڑہ وہاں پر ہے. دیکھیں ہم سب جانتے ہیں یہ سب بہت ہی بدماشی کی باتیں یہ کرتے ہیں آ کر تفریقم بین مومنین بناتے ہیں تو ان پر تو فتویٰ وہی ہوگا لعنت اللہ کی لعنت ہوگی ان پر. یہ ابھی جو ہے وہ مرزا انجینئر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے عدنان رشید صاحب کی کہا ہے کہ جی یہ انہوں نے وہاں پر وہ کہا ہے اور یہ کہا ہے اور اس طرح کہا ہے. اسی طرح مرزا انجینئر جس طرح کر رہا ہے اسی طرح پپو ملک اور پپو ملک کے ساتھ بیٹھا ہوا عامر نذیر اور یہ پیر اسکانی بھی کر رہا ہے. مفتی صاحب ان کی حقیقت کیا ہے خدا تعالیٰ کے سامنے. یہ تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو قادیانی ہے انہوں نے ایک الزام لگایا وہ اس آدمی کی میں نے آواز پہچان لی. میرے پاس وائس ریکگنیشن کا ایک باکس ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل آپ فون پر بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ فکرے بولیں تو ہم آپ کو آئی ڈی کے طور پر یوز کریں گے. سنا ہے نا مفتی صاحب آپ نے ہم آپ کی آواز کو آپ کی آئی ڈی کے طور پر یوز کریں گے. کبھی سنا آپ نے یہ نہیں سنا. جی بالکل. اور آج کل تو بھی لگا دیا سر. ہاں میں نے کوئی 3000 لوگوں کی آوازیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں جن میں یہ لوگ بھی شامل ہیں. آپ کہ وہ ایک پروگرام ملتا ہے آج کل عام آدمی بھی خرید سکتا ہے وہ سافٹ ویئر. تو آپ اس آواز کو دوبارہ چلائیں. جب میں نے دوبارہ چلایا تو مجھے پتا لگ گیا یہ تو حرامی مرزائیوں کی براڈ پر بیٹھا ہوتا تھا. وہ آپ کو نکال کر دکھا دیتا ہے وہ ریفرنس پوائنٹ. یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں کہتا ہوں پتر تو نہ صرف قادیانی ہو جا بلکہ تو قادیانیاں دا پیو ہو جا. میں کہتا ہوں ساتھ عامر نذیر کو بھی قادیانی کر. اس کا جو پیچھے خاندان ہے اس کو بھی قادیانی کر. میں تیری ہیلپ کراں گا. یار کسی قادیانی کا اسلام لانا کسی انسان کے لیے باعث اس کی طاقت میں نہیں ہے کسی انسان کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو کہتے تھے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو تسی سانو کیڑی دھمکی دے رہے ہو؟ لانتی ہو. کون سا اسلام تم پڑھتے ہو؟ ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب مفتی زاہد صاحب بھی آئے ہوئے. مفتی زاہد صاحب السلام علیکم. ہاں بتائیں مفتی زاہد صاحب کو. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ بڑے دن بعد آپ کا ملا. وہ کہاں گئے ہمارے اے بی آر صاحب؟ کہیں چلے گئے؟ میرے خیال سے وہ چلے گئے. وعلیکم السلام. کیا چیز؟ وہ کوئی کام تھا, کہہ رہے میں آ رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں. ہاں یہ دوسرے مفتی صاحب آ گئے. مفتی زاہد مفتی صاحب عامر نذیر کہہ رہے ہیں
ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਚੱਲਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ آج کل لوگ اللہ کی طرف اللہ کی مرضی کے بغیر آ جا رہے ہیں، فری ٹریفک ہو گئی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہندے جی وہ غلط ہو گئی ہے آیت۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب وہ بندہ کرسچن کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ بندہ اور شاہد صاحب میرے والوں قادیانی چھڑ کے چوڑا ہو جائے مردے نال خاتون خاندان سے شامل ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا نام پتہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ اس نے آئی ڈی رکھی ہوئی ہے سائیکو، مسٹر سائیکو۔ نہیں اس کی آواز میں نے پہچان لیا، وہ قادیانی ہے۔ سر ایک منٹ مفتی صاحب، راؤ صاحب صرف ایک گل میری سن لو، اس تو بعد جی حضور بولو سر، جی حضور بولو جو میری اگر مینوں چانس ملے نا لتر پھرن دا، میں اسے واسطے تھوڑے کول نہیں آندا مفتی میری صاحب۔ گل سنو، چانس لتر پھرن دا ملے تو پہلے میں اپنے شاد نو پھیراں گا۔ انہیں اونوں پروموٹ کیتا ہے، او جڑا بغیرت ہے نا پپو، شاہد دی آئی ڈی دے ذریعے بندہ پروموٹ ہویا ہے، ایتھے آندا رہیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح گل ہے، سمجھاندے رہے۔ میں انہاں نوں کہا سی پہلے دن تو بھی اس بغیرت نوں نہ لیا کرو کال دے اوتے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، ہن بول رہا ہوں مفتی صاحب میں مسٹر سر متھے تے ہو تسی، سر متھے تے ہو، لیکن شاہد صاحب یاد جے نا پہلے دن تو تانوں میں کہندا سیگا اے پبو ملک جڑا ہے نا اے انتہائی بغیرت انسان ہے، اینوں بالکل نہ لیا کرو آپ دی کال تے۔ تساں او دا ایکسکیوز قبول کر لیا، او جی اونے معذرت کر لی، اونے توبہ کر لی۔ اے توبہ والی قوم نہیں گی، اے او قوم ہے بھی جنہاں دا توبہ نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ بالکل صحیح ہے، میں 2 دفعہ بلاک وعدہ کیتا کرتے نے، رات نو توڑ دیندے نے۔ میں 2 دفعہ بلاک کیتا ہے، شاید کھول دینا مفتی صاحب۔ اے یجوج مجوج قوم ہے۔ بھائی رات نہ بہ یار کی ہو گئی تینوں؟ مفتی صاحب میں معذرت چاہنا، ہاتھ کن پھڑ کے معذرت چلو ٹھیک ہے جی، ہن چھڈی گئی، ہن ہو گئی۔ اب باقی 3 بندے کہڑے لائے نے؟ نہیں مفتی صاحب یہ صرف گلاں ہی جے، اے کناں نوں ہاتھ لانا۔ تسی پمپ نہ کراؤ چپ کر کے، اپنے کانٹینٹ سے رہو، میرے تے نہ آؤ۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب، ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب، خرم بھائی سائیکو مسٹر سائیکو راتی اتنے آئے اسی، میری جیڑی اپنی سروس دی آبزرویشن ہے وہ اسائلم سیکر ہے ملائیشیا دے اندر۔ کون سائیکو ہو گیا؟ وہ سائیکو جیڑا کہندا سی میں قادیانی اسائلم سیکر ہے، وہ اسائلم سیکر ہے ملائیشیا دے اندر آ رہا ہے۔ تو میں انہوں پوچھا سی کہ تینوں اگر اسلام تو اتنی متنفر ہو گئے ہیں تو عیسائی ہندو یا سکھ کیوں نہیں بنیا؟ کیونکہ وہ ملائیشیا اندر ہے اور میں پاسبلٹی میری جیڑی آبزرویشن ہے وہ اسائلم سیکر ہے اور وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے جیڑی جی میں شاید صاحب دی برار دی میں کہ تو ساڈی برار تے دوجیاں براڈاں تے اتنی بڑی گالاں کھڑدے نے، مرزئی جڑے کتی دے بچے بیٹھے نے سارا دن گالاں تو علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے انہاں دا۔ نہیں دیکھیں یہ مرزئی ہے وہ آدمی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ نہیں ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب، ہو جائے گا نہیں قادیانی ہو جائے۔ میں کہتا ہوں جس کا دل چاہتا ہے، اور لیکن وہ لوگ ہوتے نہیں ہیں نا، قادیانیت کو چھوڑنے والے بہت ہیں۔ جو چناب نگر ہے نا آدھے سے زیادہ قادیانیت کو چھوڑ چکا ہے۔ آپ نے دیکھا جب چندہ بہن نے تھوڑی سی بات کی تھی ادھر کھڑے ہو کے، حالانکہ وہ مین ایریا ہے ان کا، جہاں پر وہ کھڑی تھی اس کے ساتھ فضل عمر ہاسپٹل تھا ان کے پیچھے، اور ان کے سامنے وہ دکانیں وغیرہ تھی، جس کے بعد ایک سڑک جاتی ہے گول بازار کو۔ تو وہاں پر تو قادیانیوں کے ایسا قبضہ تھا، کوئی قادیانیوں کے خلاف چوں نہیں تھا کر سکتا۔ دیکھیں آج میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، وہاں پر وہ جو انہوں نے ناکے شاکے لگائے سب اٹھا دیے ہوئے۔ اور ڈاکٹر صاحب مبارک ہوئے جی۔ ہاں جی، وہ بندے جی میرے کو 3 ویڈیو پئی دیاں جی، ہاتھ کڑی لگی دی، لتر پلیٹ ہوندے سارا سسٹم۔ نہیں دیکھیں چناب نگر جو قادیانیت ہے نا پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیانیت سے صاف ہو گیا ہے تقریباً، اور جو قادیانی رہ گئے ہیں چناب نگر میں وہ مجبور ہیں کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ لیز ہولڈ ہے، وہ اس گھر کو بیچ نہیں سکتے ان کی مرضی کے بغیر، اور مرزائی ان کو ٹھیک قیمت نہیں دیتے۔
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੂੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਈਏ ਫੂੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮਰਦਾਈਓ ਪੋਸਟ ਵੇਖ ਲਓ। नहीं, ये जो है ना, ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक ऐसा आदमी जिसे मैं बरसों तक समझता रहा कि ये शख्स जो है ये मतलब कादियानी को जो है ना बताता है, उसके बारे में हकायक बताता है। यार इतना मतलब गलाजत निकली अंदर से जिसका हिसाब कोई नहीं है। और मैं एक और बात सोचता था, पहले ये आता था मुफ्ती मुबशर की ब्रॉड पर, फिर मैंने इसे देखा AK शेख साहब की ब्रॉड पर। मतलब उन दिनों मैं सोशल मीडिया पर कभी नहीं आता था, लेकिन मैं सुनता था कि लोग हैं और मेरा बड़ा अच्छा इंप्रेशन था इसके बारे में। मतलब इस तरह की खबासत करना और अल्लाह से ना डालना, ये तो इल्हाद की बात है ना, कि जो शख्स ऐसी बातें करता है वो तो अल्लाह पर ईमान ही नहीं रखता। पर तू कौन होना है, तो मैं कौन होना है किसी नु कादियानी करन या ना करन वाले। ये तो एक मजहब को जो जानता है उसके मामूली सा तालिब इल्म ये जानता है कि इस्लाम में कोई इंसान किसी इंसान को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। हाँ, एक हुज्जत पूरी कर सकता है, और जिस पर खुदा ताला जिसको हिदायत ना देना चाहे तो दुनिया मर्जी हुज्जतां पूरी कर ले, उन्हें खबीस ने मनना ही नहीं है। वो तेरे वर्गे बहुत ने। मुफ्ती साहब आपने कुछ नहीं कहा, तुम भी कोई फतवा जारी करो या ओपिनियन दो। डॉक्टर साहब बंदे केड़े केड़े टंगे हुए ने, मैंने ये नहीं समझ आई। मैनू आप नहीं समझ लाई कि कौन बंदे ने। ਮੁਫਤੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ओया ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੰਗਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਗਨਾ ਆਮਰ ਹੰਜ਼ੀਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਕੈਸਰ ਮਲਕ, ਸ਼ੁਏਬ ਰਾਜਾ, ਯੂਸਫੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨੀ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਗੜ ਤਲਾ ਮੁਲਹਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਏਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੀ ਚਸਕਾਨੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। नहीं क्या बात पूछ रहे हैं? ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗੇ ਜੇ? ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। हाँ जी, उन्होंने कहा है चुस्कानी ने कहा है कि जड़ा है ये कहते ने लफज आशिक रसूल, जिस तरह कहना है आमर अवान उसे बैठा से, उन्हें कहा जी हम आशिक रसूल हैं। तो उन्हें चुस्कानी ने कहा है कि तुम अपनी बीवी का आशिक ढूंढो, तुम अपनी बीवी का माशूक ढूंढो, ये करो, वो गालां कढ़दे ने। ते ये वो ने जेड़े उत्थे बह के ते मतलब सारी तोहीन करांदे ने। उन्हें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह पीर दस्तगीर के बारे च वो लफज इस्तेमाल किए ने जड़ा कोई बंदा कह नहीं सकता। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की ना उन्होंने लाल शहबाज कलंदर, उन्होंने मतलब वो कहा जी वो मेरे वो लफज ने जड़े बंदा नहीं कह सकता। और रिकॉर्डिंग है तुहाडे कोल? है शायद साहब को हुणे सुना देंदे ने, 1 मिनट से चुस्कानी ने कहा रिकॉर्डिंग सुना देंदे ने। थले एक बंदा आया ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੋ ਯਾਰ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਥਲੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਚੁੱਕ ਗਏ ਆ ਗਏ ਜੀ। उस्मान साहब बोलो जनाब। मैंने सिर्फ डॉक्टर साहब से बात करनी है, अगर सिर्फ 2 मिनट। जी जी करें ना, आप करें जनाब, बात करें। वालेकुम सैयद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम। आप पहले अपना तारुफ कराएं, आप कादियानी हैं या मुसलमान हैं? देखें मैं हूँ मुसलमान,
लेकिन आप कादियानी नहीं हैं। टाइम टू गो होम। आप मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वाले नहीं हैं। आपके मेरी पहले भी बात हो चुकी है, बहुत दफा बात हुई है। नहीं, आप मेरी सवाल का जवाब तो दें भाई। जी मैं मुसलमान हूँ और मैं नहीं, आप मिर्जा गुलाम कादियानी को क्या मानते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को लानती मानते हैं, उसने नबूवत का झूठा बस दावा ठीक, किया। बात खत्म हो गई, अब बात करें। जी मैं सिर्फ आपसे गुजारिश है कि आप जैसा एक बड़ा आदमी जिसका इतना देखें काम है कई सालों से, इल्म की दुनिया में भी और दुनियावी काम भी आपका बहुत बड़ा है, ठीक है। आपकी कुछ अर्सा पहले पीर असकानी से बात हुई और आप दोनों की मुखालफत हो गई, ठीक है। किसी बात नहीं, वो बात ऐसी नहीं थी, आपको गलती लगी है। मैं सारी बात से वाकिफ हूँ। उन्होंने आपकी किसी बात पे मजाक उड़ाया था जब आप नहीं, मजाक नहीं उड़ाया था। जी मैं मुझे बात करने देंगे आप? एक मिनट। नहीं, आप बात ठीक करें ना, ताकि सुनने वालों को वो वाकया बयान करें किस बात पर। की पता है डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब एक सेकंड रुके दसो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੱਸो। हाँ बताएं। वो डॉक्टर साहब ने अपना एक वाकया बताया था कि नहीं, बिल्कुल गलत है। पीर साहब ने एक ब्रॉड पे उसके बारे में कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत है। सेकंड उस्मान साहब एक सेकंड उस गलती नहीं हुई है, दूसरी गलती कुरान पाक ते हुई सी। आयत के बारे च सी। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ नहीं, कुरान पाक से भी नहीं हुई। शायद साहब एक मिनट मैं इन्हें बता दूं। झूठ बोल रहे हो। नहीं, एक मिनट। यहाँ पे मौजूद हैं। यार एक तो शायद आप हर किसी को एकदम झूठा कह देते हो, बात तो सुन लिया करो यार। हर किसी को काफिर कहते हो, हर किसी को यार। नहीं, एक मिनट, सारे खामोश हो जाएं, मैं बताता हूँ किस बात पर हुई थी। वो 26 मई का दिन था इस साल या 25 मई का। शाहिद साहब सीरतुल लानती जो है, जो जहाँ पर मिर्जे की झूठी रवायतें लिखी हैं, वहाँ पर सफ़ा नंबर 10 और 11 पढ़ रहे थे। मैं इधर ही बैठा था डॉक्टर साहब, मैं साथ था आपके। कौन? शफीक साहब बात कर रहे हैं? उस्मान यहाँ पर कम से कम 1 2 हाँ, 3 सुन लें जो भी 4 आप मुझे वाकया दोहरा लेने दें। हाँ, और तुझे अभी मैं उस्मान बताता हूँ, तूने जाना नहीं है यहाँ से। एक मिनट, शायद साहब एक मिनट। शायद साहब मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੌਨਕੈਸਟਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, एक मिनट भाई, नहीं, एक मिनट। शायद साहब प्यार मोहब्बत ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। नहीं, एक मिनट शायद भाई एक मिनट। करके ना तो सुन, अगो तेरा मौकफ लेना, मैं चुप हाँ, करके एक मिनट, वो वाकया आपको हम बता देते हैं और वो बात ये थी कि शायद साहब एक मिनट। हाँ, मैं इजाजत हो तो बताऊं वो वाकया शायद भाई। डॉक्टर साहब बोले नौज बिल्ला, डॉक्टर साहब क्यों? हाँ नहीं, हाँ सारे खामोश, एक मिनट के लिए गल है उन्होंने करन दो डॉक्टर साहब। एक मिनट ना, ताकि सबको साफ हो जाए कि पीर ये ने क्या बात हुई थी इस आदमी के साथ। ये पढ़ रहे थे उसकी मौत का वाकया। पीर ये जो इश्कानी जो भी है, ये आया और इसने कहना शुरू किया, जनाब इसमें क्या खराबी है, और ये तो सारों के साथ होता है। मैंने सूरह इनाम की एक आयत पढ़कर सुनाई और उन्हें कहा कि कुरान पाक में लिखा है कि जो झूठी नबूवत और वही का दावा करते हैं उन्हें उस वक्त देखा करो, मतन बयान कर रहा हूं, जब वो मौत की सख्तियों में मुब्तला हो। जनाब इसने कुरान की आयत को भी गलत करार दिया और कहने लगा मिर्जा तो बड़ी इज्जत की मौत मरा। तो उसके जवाब में मैंने शाहिद साहब से कहा था, लफ्ज वही दोहराता हूं, इस कुत्ते को नीचे उतार दो। यही कहा था ना मैंने। पहले उसने कहा था डॉक्टर साहब तुम जैसे मैं अपने जेब में रखता हूँ। हाँ, लेकिन जो भी कहा मेरे अल्फाज थे, इस कुत्ते को नीचे उतार दो। उस्मान प्यो दे ना तो जाना नहीं, तू प्यो दे तो जाना नहीं। इतने हुण तू वड्डी स्क्रीन करके ना अपनी शक्ल दिखानी है। डंकास्टर आंदी तो बड़ी दूर की गल है। जे तू इतने प्यो दे ना, इधर आ, इतने आ, चल कैमरा ऑन कर। प्यो दे ना तो कैमरा ऑन कर। हाँ जी, अब सबको पता लग गया कि मैं बात क्या हुई थी। अब मेरी बारी है। और जो शख्स हकायक को ऐसे छुपाता है,
हाँ जी शाहिद साहब हल्फिया बयान दे, कलमा पढ़ के कह के तू आना मेरे को डंकास्टर, हल्फिया बयान दे के कह तू आना मेरे को डंकास्टर साहब शाहिद साहब गाल सुनो। हल्फिया बयान दे तू आना मेरे को शाहिद साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है जो तू मेरे को ना आए थे, चुप कर यार, तू अपने फिर प्यो दा बदतमीजी नहीं कर है रहे जो तू मेरे को ना आए थे, बदतमीजी कर रहे हैं, चलना कोई आके मिले मैनू, शायद बदतमीजी कर रहे हैं तू, मैं तेने बदतमीजी नहीं की, मैंने बदतमीजी नहीं मैं कोई बदतमीजी नहीं करदा, तू मैनू कह तू मैं डंकास्टर आ जाऊंगा, मैं क्या शायद साहब मैं तेरे को डंकास्टर आ जाऊंगा, मैं तक डंकास्टर आ जाऊंगा, किस नीयत ना क्या यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ, मैं को पागल हां, तू दस किथे रहना है? शायद साहब रहने दें, उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया, आप रहने दें। उन्हें व्हाट्सएप पे कॉल कर लेना वा, हाँ ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। हाँ कैसी ये बेवकूफ वाली ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਐਡੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਐਡੇ ਇਸ ਉਮਰ ਚ पहले तुम कितने सीगे, पहले तुम नहीं शायद साहब मेरी रिक्वेस्ट नहीं, एक मिनट उस्मान साहब आप खामोश हो जाए, हाँ नहीं खामोश हो जाए उस्मान साहब, खामोश हो जाओ। तो शायद भाई आप रहने दें, उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया है, उन्होंने मिर्जा को लानत डाल दी है, तो ठीक है अब बताएं, उन्हें पूछे आप आपस में ना, नहीं एक मिनट, आपस में नहीं झगड़ा करना चाहिए। बात सुन ले मेरी, 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये खत्म कर दो यार, दोनों तरफ खत्म कर दो, कोशिश कर रहा हूँ, बात सुनोगे उस्मान मेरी? उस्मान बात असल में ये है, आप जब आए आपने नीचे एक सवाल लिखा और आपने हिट किया डॉक्टर साहब को। देखें बात यह है कि अहले इल्म के साथ हुक्म है असातिज़ा का कि अदब का रिश्ता लिहाज रखें, ये हमने सीखा है, और आपने तंजन ये बात वो तंज में आती है जो आपने नीचे फिक्रा लिखा और हम सब हर्ट हुए। मुझे भी मौका दीजिएगा, कोई नहीं शायद भाई नहीं शायद भाई जाने दे, मेरी दरखास्त पर आप इसे छोड़ दें, जो शख्स अपना चेहरा दिखा देता है वो बदजन जो है ना, हाँ उसके बारे में बदजनी ना करें, उसके बारे में हमें हुस्ने जन रखना चाहिए। जी तो उस्मान साहब आप बात करें, हम आपको जवाब देंगे, आपको हमने बता दिया बात क्या हुई थी। जी आप भाइयों बात असल में ये है, आप सब भाई हैं मेरे, आप सब मेरे भाई हैं, आपकी निस्बत रसूल से है, मुझे आप गालियां बजाएंगे मुझे कोई परवाह नहीं है, और नहीं निस्बत रसूल से है भाईजान, आपको इस निस्बत का पता नहीं है, इसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। उस्मान साहब आप बात करें, आप छोड़ दें इसको, अब मैंने आपको वो याद करा दिया किस बात पर हमने इसे उतारा था। शाहिद भाई उस्मान साहब मेरा ख्याल सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि जिस तरीके नाल उस्मान साहब ने किया ना कि मैं डंकास्टर आ जावांगा, मैं क्या थोड़े को डंकास्टर आ जाऊंगा, उस्मान भाई वो गल ते सुन लवो, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। उस्मान मुफ्ती जाहिद साहब मौजूद हैं, बात खत्म कर दें। दूसरी आईडी है, मैं आपको भी सुनता रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी बहुत दफा बात हुई है, डॉक्टर साहब को याद नहीं होगा क्योंकि बहुत से लोगों से बात होती है, बंदे को याद नहीं रहती। मेरी आप कभी नहीं भूलेगी उस्मान साहब, आपका चेहरा जो देख लिया। शाहिद भाई को आपकी बात की समझ नहीं लगी, आपने अपने तौर पर बात की है, वो समझें कि शायद आप उनको धमकी दे रहे हैं, ठीक है, और इसलिए उन्होंने मेक श्योर किया है कि आप कादियानियत पे लानत डालें। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे कहा था तो मैं वक्त ये कहा था कि मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आके आपको पकड़ लूंगा, ये तो मैंने कहा ही नहीं। चले मिट्टी डालें, सारी बातें छोड़ें, जो बात मुद्दे की है वो करें, ठीक है। हमें चाहिए कि इस मामले को हम ख़त्म कर दें किसी भी तरीके से। डॉक्टर साहब आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, PhD की हुई है आपने, आप दुनिया देखी आपने, आपके YouTube पे भी चैनल पे भी कितनी वीडियोस आपकी पढ़ी, ऑडियोस पढ़ी हैं, सब कुछ है चल रहा। तो आप उनको कहें कि इस मामले को, ये तस्वीरें हटा के उनको उनके रास्ते पे चलें, आप अपने रास्ते पे चलें। हमें जो हमारा टारगेट जो है हम उससे हट रहे हैं सारे। 5 दिन हो गए हैं और वो मज़ई जो है वो बगलें बजा रहे हैं और प्रोग्राम पे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके, लेकिन हमारे टिकटॉक पे ना हमारी आपस की लड़ाइयाँ चल रही हैं। मेरी तो गुजारिश यही थी,
अच्छा शायद उस्मान मेरी भाई, बात होती है, आप मुफ्ती साहब की बात सुने, मुफ्ती साहब जवाब दे दें। दूं। जी जी हाँ, मुफ्ती साहब जवाब दें। उस्मान साहब आप ये बताएं कि ठीक है, आप नहीं, सिर्फ मैं भी कह देता हूँ ठीक है जी, गल खत्म करो, आप तरीका बताएं कि किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है। हल शायद करने भाई का की मशवरा डिमांड है। दे दिया, हल भी बताएं। शाहिद भाई की जो डिमांड है ना, उससे मैं पहले भी एग्री था, आज भी एग्री हूँ। क्या डिमांड है? शाहिद भाई की डिमांड वैलिड डिमांड है कि मिर्ज़े को जो वो आके वहाँ पे वो कहते हैं उसके साथ सलातो सलाम पढ़ते हैं। शाहिद भाई का सबसे बड़ा एतराज़ वही है और मैं उसके साथ खड़ा हूँ कि उनको वो पढ़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये डिमांड नहीं है, मैं आपको शाहिद बताऊं, भाई की मेरे साथ पहले यही डिमांड थी, शाहिद भाई को याद होगा। मसला ये भी नहीं बना, मसला जी। इस बात से भी नहीं बना, ठीक है, मिर्जे पे मर्जई जो कुछ भी कहे, मसला जो है वो मिर्जे के लिए मजीद इससे आगे बढ़कर खुद भी साहिब जैसे तज़ीमी अल्फाज बोलने से बना है कि मुसलमान हो के उसको साहब कह रहा है मिर्जे को। फिर उसके बाद जो मिर्जई हैं, अगर मुसलमान और मिर्जई की डिबेट हो रही है तो वो उल्टा मुसलमान की बेइज्जती करके उसको नीचे उतार देते हैं। यार ये कौन सी आपकी मुसलमानी है? हजरत उन लोगों का मिजाज ही मुख्तलिफ है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे वो मतलब कि पहले से लगी हुई एक आग है और उसको सेकने के चक्रों में है बस। बाकी अगर आप कहें कि वो मुनाजरा चाहते हैं और मिर्ज़ाइयत से लोगों को बेजार करना चाहते हैं, क्या ये बेजारी है कि आप लोगों से कहें कि ये भी हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, ये बरात पे बैठे हैं जी, भाई आप कैसे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये बड़े अहले मोहब्बत हैं, ये बड़ी तमीज़ से बात करते हैं। मतलब सारी बदतमीजी फिर मुसलमाना च रह गई है। ये मिर्ज़ाई तमीज़ वाले ने तो वो बेगैरत मिर्ज़ा जिसने नबियों को नहीं छोड़ा, गालियाँ तक दी हैं अंबिया को, उस बेगैरत के मानने वाले तमीज़ वाले हैं और मुसलमान गालीबाज। गालीबाज गाली किसको देता है? गुस्ताख रसूल को गाली देता है ना, जिसके बारे में कुरान कहता है उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, के है नहीं हरामदे जड़ा नबी दा गुस्ताख, वो हलाल दा नुतफा हो ही नहीं सकता। आप बता दें हल क्या है? टू बी ऑनेस्ट, हम आपका हल अगर माकूल हुआ जरूर उसको कबूल करेंगे, लेकिन उस्मान भाई इन चीज़ों को ज़हन में रख के बताइएगा, ये शाहिद की डिमांड नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है। आप शाहिद भाई से जो पहले बात हुई थी ना, तो शाहिद भाई की ये डिमांड थी, तो शाहिद भाई को याद होगा शायद। मैं भाई आपसे कह रहा हूँ आप लफ्ज़ नहीं सुन लेना, मैं आगे बात बता रहा हूँ। ये शरई मसला है, अभी मसला जो है ना वो तो बहुत आगे निकल गया, अभी मसला तो बहुत आगे निकल मुझे गया। इससे बात करने दे प्लीज। चाहे साहब उसको जरा बताने दें कि हाल उसके नजदीक क्या है। अब बात बड़ी आगे बढ़ गई है मेरी जान दे टोटे, यही मसला हो गया, अब बात बहुत आगे चली गई है ना। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, क्या तुम आज के रसूल उस्मान? जी जी, वो आज के रसूल वाली बात पे भी मेरी बात हो चुकी है, और हमारे नज़दीक, मेरे नज़दीक आज के रसूल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो बता रहे हैं, वो मुफ्ती साहब ने भी आपको बताया था आकर, वो बिल्कुल सही बात है कि हमारे नज़दीक आशिक रसूल कहना और आशिक रसूल सल्लम के लिए आशिक का लफ्ज़ यूज़ करना ये हमारे लिए जायज़ है, हम इसको बुरा नहीं समझते। तो पीर असकानी तो मां भैन कर देगा जी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇਂਗਾ ਤੇ मैं ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਉਫ तक नहीं कहेगा। मिर्ज़े कादियानी के जो कारनामे हैं उसकी इब्तिदा कैसे हुई थी भला? इन्हीं हरकतों से हुई थी। वो अपने पास से शरीयत के मसले गढ़ना शुरू हो गया था, जैसे यहाँ फतवा दे दिया ना खुद ही, आशिक रसूल कहने वाला फलां है फलां है, इस तरह की बातें मिर्ज़ा भी छोड़ना शुरू हो गया था पहले पहले। उसके बाद जाके उसने बड़े दावे किए हैं, पहले इस तरह के छोटे छोटे दावे किए। यानी ऐसी बात करो जो सारे लोग सुनकर कहें यार ये अजीब बात इसने कर दी है, सिर्फ लोगों की अटेंशन लेने के लिए, लोगों की तवज्जो लेने के लिए। वरना कोई आदमी दीन होकर ये कभी नहीं कह सकता कि आशिक रसूल कहना गुनाह है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मुफ्ती साहब 1 मिनट, 58 मिनट की वीडियो मैंने मुफ्ती साहबान को भेजी है पाकिस्तान में, ठीक है, और इसका पूरा नोटिस लिया जाएगा मेरी जान दे टोटे। इसलिए मैं खुद से नहीं कह रहा, ये आलम दीन बैठे हुए हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कल मुफ्ती साहब आए थे, मैंने वो पूरी बात सुनी उनकी भी,
उन्होंने भी ये पूरा उन्होंने कोई कुरान और हदीस की बात नहीं की। नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो मुबश्शिर ने यहाँ पे कोई कुरान और हदीस की बात नहीं की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, अपना मौक़िफ़। मैंने दो दफा उनसे कहा मुझे आपका अपना मौक़िफ़ नहीं चाहिए, मुझे कुरान और हदीस से बताएं इसके बारे में। मुफ्ती साहब ने कहा क्या मैं आपको आप चाहते हैं कि मैं अपने मुंह में तुम्हारा लुकमा डालूं? अगर मैं डॉक्टर साहब को यहाँ पे बुलाता हूँ, मुफ्ती जाहिद साहब को यहाँ पे बुलाता हूँ, मुफ्ती जो है वो ABR को बुलाता हूँ और उनको पूछता हूँ कि सर ये मसला है, मुझे कुरान और हदीस से ये हल करके बताएं, और ये तीनों कहेंगे कि नहीं जी सर जी कुरान और हदीस नूं साइड ते रखो, मैं तो अपना मौक़िफ़ दाना। जो अपना मौक़िफ़ हो जाएगा ना, उहदे च कुरान और हदीस कोई नहीं आया। मुफ्ती साहब ने जो भी किया है वो कल किया, वो सिर्फ ते सिर्फ अपना मौक़िफ़ दिता। कोई कुरान दी हदीस मेरे को पूरी वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल ते लगी पई है, ऐसे मैं चाढ़ी सी ताकि रिकॉर्ड रवे, बाद लोगों को शक ना पवे। मेरा दिल दुखिया, मैं एक आशिक़े रसूल हाँ, ऐसे मैंने पिछले 3 दिन तो एदी मंजी ठोकना पिया, एदे अज़ाइम दसना तेनू, मैनू रोटी खा लेंदे लैपटॉप दे उत्ते जाकर एक गुस्ताखी एदी दसांगा। मेरी ਜ਼ਕੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਕੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਲਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਠੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸਮਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਰਾਈਟ ਉਸਮਾਨ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਪੈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ, ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਸਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਵੇ? ਮੇਰਾ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇੰਝ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਸਤਾਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ 10,000 ਅਲੀ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ 10,000 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਕਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਹੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 1300 ਗੁਸਤਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਸਰ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੋਇਆ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਲਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀਡੀਓ, ਲਾ ਦੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। 1 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਆਇਆ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀਆਂ, ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਬੇਗੈਰਤ ਕਾਣੇ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ।
ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਪਿਓ, ਸਕੀ ਮਾਂ, ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸੌਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਫਤੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਚੂँਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ 1974 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਟਰ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਿਆਤੁਲ ਅਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਾਜ਼ ਜ਼ੰਦੀਕ ਨੇ, ਕਾਫਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਬਰੀਨ ਦੀ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਜੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਸੇ ਕਤਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਤੁਨ ਨਿਸਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 140 ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਸੀਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤੁਲ ਅਨਾਮ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 68 ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸੇ ਕਤਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਜ਼ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਫੁਰਕਾਨ ਹਮੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਇਤ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹੀ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੂਸਰੀ ਨਾਲ, ਅਸਕਲਾਨੀ ਚੂਸਰੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਿਸਟਰ ਉਸਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਦੀਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਫੌਰਨ ਉੱਤੇ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬੀਬਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਖੁੱਡ 'ਚ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਗ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਿਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨੀਆਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮਿਸਟਰ ਉਸਮਾਨ, ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪਰਸਨ, ਗੋ ਹੈਡ। ਸਾਬ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆ ਸਵਾਏ ਸਭੋ ਸ਼ਿਤਮ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈ ਕਿ ਸਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਤਨੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨ ਮੁਰਤਾਜ਼ ਜ਼ੰਦੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਿਆ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅ 151। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੂਸ ਦਾ ਸਪਾਈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ PTI, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਡ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ दीन इस्लाम से बात करनी शुरू हो गया। और अल्लाह ताला ने ऐसी गिरा खोली है दी, डॉक्टर होली स्पिरिट जैसे दोस्त मिलते चले गए, इसी तरह जाहिद साहब आ गए, इसी तरह दूसरे मुफ्तियान आ गए। लेकिन यार तुसी ए ते थोड़ा जा मेहरबानी करो, दीन इस्लाम है, कुरान मजीद है, कुरान मजीद है यार, कोई तुहाडी मेरी किताब दी गल नहीं हो रही, हुक्म इलाही कुरान मजीद। अदर साहब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਰਾਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। शाहिद साहब गल ना बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे दो बंदे ने गुजारिश है इस टाइम, एक तो मुफ्ती साहब बैठे ने जाहिद साहब, ठीक है, एक उत्ते बैठे ने होली स्पिरिट साहब। इन्हां दी मौजूदगी दे विच मुफ्ती साहब ते तुहानूं पता वे कि मुफ्ती ने ते कुरान हदीस ते डॉक्टर साहब भी माशाअल्लाह काबिल एहतराम ने, काबिल इलम ने, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, मुफ्ती साहब आप कुछ गाइड करें कि ये कैसे ये मामलात ख़त्म होंगे। और फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो भी गाइड कर रहे हैं, तो फिर कोई ऐसा करते हैं, कोई 4-5 दोस्त मिल के तो इस बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये ज़ाती जो अभी हो गया ना मामला, ये ज़ातियात पे ज़्यादा हो गया, फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। हम आप जैसे मेच्योर लोग हैं सारे, तो इस चीज़ से हमें जो है ना वो ख़त्म जो है इसको करना चाहिए, ना कि इसको और जो है ना ब्रॉडों पे तस्वीरें लगा के और फैमिलीज़ के बारे में गाली गलौज, माँ के बाप के, ये चीज़ें। उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब शायद की सारी फैमिली को कहा कि इन लोगों ने जो है ना टांगा हुआ था, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त शाहिद साहब की फैमिली नजर नहीं आई थी? शाहिद साहब हमारे भाई हैं, मैं शाहिद साहब के पास जाकर पाँव को हाथ लगा लूंगा यार, मैं जाके पाँव को हाथ लगा लूंगा यार। आप शाहिद साहब बैठे मौजूद हैं यहाँ पे, वो अपनी बात कर लेंगे, शाहिद साहब के साथ हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे भाई हमारे। मैं ख़त्म कर चाहता हूँ, इसलिए जाहिद साहब कह रहा हूँ मुफ्ती साहब से बात। सिर्फ मैं एक जुमला कहता हूँ, आप यही सवाल उन लोगों के आगे जाके रखें जिनका मसला है, जिनकी वजह से मसला बना है, कि वो इस प्रॉब्लम का हल चाहते हैं कि नहीं चाहते। फिर उनसे पूछें उनके हिसाब से इसका क्या हल होना चाहिए, फिर आप हमें बताइएगा, फिर हम अपनी अर्ज भी पेश कर दें। अगर शाहिद साहब इजाज़त देते हैं तो मुफ्ती साहब और मैं बात कर सकते हैं। शाहिद साहब आप बता दें। उस्मान मुझे ये बता, हर दफ़ा मुझे क्रिटिसाइज किया गया, मामा भैन दी गालां करना, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, लोगों दी फैमिलियां टारगेट करना। मैनू एक बंदा दस दे कि किसे मुसलमान दी माँ भैन मैं इत्थे टंगी होए। हाँ, मरज़इयां दी टंगी सी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਜੱਟ PTI ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਬਰਾਡ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਡ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? कैसर मलकली। एक कलमा पढ़ के कह गए कि मनु नहीं पता। काका छपाई इतने बैठा रहे, काका छपाई वो मिर्जे हंजीर की ID लै जाए ना उत्ते, अमन नज़ीर उत्ते जाके सब तो पहले ID थले सुटता है। मैं दूजी ID तो गया से, जो तस्वीर लगी हुई सी, मैं दूजी ID तो गया, मैं गाला कट के आया, फिर मैं दोबारा बदल के गया ID ते, इन्हें कहा जी पहले ID चेंज करके आओ, गाली बाज दो, तुसीं उत्ते आना था। इन्हूं पता है कि शायद बीवी की तस्वीर लगी हुई है। यार देखो, हो सकता है हुस्ने ज़न भी रखो कि उन्होंने शाहिद साहब ने फैमिली देखी नहीं हुई, उन्होंने नहीं पता चलिया यार तेरी फोटो है ना, प्लीज है गल ना कर यार, खुदा दा वास्ता। उस्मान साहब उसने जान दसा मुफ्ती मुबशर साहब चाहे कुछ भी होवे, मैं उन्हों की इज्जत करदा, उन्हों का बहुत बड़ा इस खत्म नबूत वास्ते पूरी जिंदगी उन्होंने सर्व की है। अना मोची दी ID
ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਅਨਾ ਮੋਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, तो ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਵਾਸਾਂ। ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਵਾਲਵ ਭਾਈਜਾਨ। ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸਮਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਓਕੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੀ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡਾ YouTube ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੜਨੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਠੱਠਾ। ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼ੀਅਤ, ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼ਣਾ, ਮਰਜ਼ਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਜ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਅਜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇਹਨੇ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰਫ ਵੇਖ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੂੜਾ ਚਮਾੜ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ, ਝੂਠਾ ਲਾਂਤੀ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਨਵਾਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਲੈਂਦੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਭੈਣ ਹੋਈ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, आप कुछ कर दें प्लीज़, आप बोलें और मामला ठंडा करा दें ताकि जो है ना आगे बढ़ा जाए। 5 दिन हो गए हैं, वहीं पे रुके हैं सारे। नीचे भी आप कमेंट देख रहे होंगे, सब लोगों की यही ख्वाहिश है, मुसलमान भाई हैं सारे, तो यही ख्वाहिश है कि ये मामले को जल्द से जल्द ख़त्म करा दें। तो फिर प्लीज शायद भाई आपकी बात, शायद भाई सिर्फ आपकी बात मानेंगे, मुझे पता है सिर्फ आपकी बात मानेंगे, आपकी बात को नहीं टालेंगे। उस्मान भाई तुसी जिथे काम जनाब भैन दोगा ने काम शुरू किया है,
ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਚਰ ਸਕਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮਿਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ नहीं वो गाल थोड़ी है, वो तो हकीकत है। डॉक्टर साहब आप प्लीज आप मेहरबानी करें शाहिद भाई को कहें कि इस दफा ये खत्म करें। नहीं आप तो वो मुफ्ती साहब चले गए हैं मेरा ख्याल अभी, तो मुफ्ती साहब ने आपसे कहा था तो आप वैसा कर लें जी, तो फिर मुफ्ती साहब आपको हल बता देंगे। तो देखें बात ये है कि हम जो हैं हम वाकई अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर काम करते हैं और हम किसी इंसान के लिए नहीं करते। ये मैं बड़ी साफ बात कर देना चाहता हूँ। और जो अगर आप अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर करते हैं तो खुदा ताला ने मना किया है ऐसे लोगों से जो लोग इस्लाम में तफरका डालते हैं। सूरह तौबा में लिखा हुआ है कि जो तीन काम करता है, ज़रारन ज़रर पहुँचाता है, व कुफरन और कुफर करता है, वह तफरीकम बैनल मोमिनीन और तफरका पैदा करता है मोमिनों के दरमियान, उनके करीब ना जाने का हुक्म है। और फिर जो मुर्ताद किस्म के लोग हैं उन पर तो लानत डालने का हुक्म है कुरान पाक में। तो असल बात यह है कि इन्होंने तफरीकम बैनल मोमिनीन, जो एक बड़ा ही बहुत बड़ा इस्लाम में जुर्म है ये बात करना, एक फ़िल मामला जो वाजिब भी नहीं है उस पर वो शैतान नुमा शख्स ने ना सिर्फ गालियां दी बल्कि ऐसे पेश किया कि वो आप पर फर्ज है। अब यही बातें इस्लाम की ताकत को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किसी इमाम का अगर फतवा है भी या किसी आलिम का है वो तो हम पर वाजिब भी नहीं है, वो तो एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आपको बुरा लगे आप उसको लिख कर दे दें कि भाई साहब तुम्हारा फतवा मैं मानता ही नहीं, कोई अर्ज नहीं है, आपका इस्लाम तो नहीं जाएगा। लेकिन कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर फर्ज है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कुरान और सुन्नत से सिर्फ एक हुक्म का आपने इनकार करना है। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक बहुत बड़ा ग्रोह था जिसने सिर्फ ज़कात का इनकार किया और बाकी सब चीज़ पर अमल करते थे। और इस बात पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान बहस भी हुई और फतवा ये दिया गया चूंकि इन्होंने ज़कात से इनकार किया है, ये काफिर हैं और इनके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। ये लोगों को बड़ी एक बात वाज़ेह नहीं रहती कि आपने इस्लाम के मुखालिफ जगह जाने के लिए इस्लाम के सिर्फ एक हुक्म का इनकार करना है जो कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है। इन्होंने उसका इनकार कर दी। इन्होंने तफरीकम बैनुल मोमिनीन की और कहा कि आशिक़ रसूल, मैं हूं आशिक़ रसूल, इसने गाली दी। और आमिर नसीर ने भी यही किया, उसने इसकी तस्दीक की। तो जो शख्स मोमिनों में तफरका डालता है और इस्लाम की ताकत तोड़ना चाहता है वो हमारा दुश्मन है, हम उसे कभी दोस्त नहीं मानेंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए क्योंकि ये कुरान और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, तो हम तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, इससे सिर्फ एक बात हो जाती है कि आपको अपने दुश्मन की पहचान हो जाती है। तो आप सबसे आसान मामला मुफ्ती साहब ने जो कहा वो जरूर करें, लेकिन मेरी राय ये है कि इन लोगों की हमें पहचान हो गई है, ये खुदा ताला जानकर ऐसा करता है ताकि आप उन लोगों को पहचान लें जो मुसलमान नहीं हैं और इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो इन्हीं बातों की वजह से पहचाने जाते हैं। और ये जो मर्ज़ियों ने और दूसरों ने मशहूर कर रखा है कि जनाब हो तुम कौन होते हो फतवे देने वाले, और ये फैसला खुदा ताला ने हमें हक दिया है ये फैसला करने का। यही तो इंसान का इम्तिहान है कि आपके पास कुरान है जो सिलेबस है,
उसवा हसना है, और कुरान में कहा गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और उसवा हसना ये है कि जो कोई झूठी नबूवत का दावा करेगा, मुर्तद होगा, उससे वही सलूक करो जो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुसलमा कज़्ज़ाब के 2 सफीर जो आए थे उनको 2 लहजे भी अपने सामने नहीं बैठा दिया, बल्कि उठते हुए कहा कि अगर सफीर को मारना की इजाजत होती तुम दोनों की गर्दनें उतार देता। और वो अपने आप को मुसलमान कहते थे मुसलमान, बस फर्क इतना है कि हम मुसलमान को भी नबी मानते हैं, बाकी तो हमारा सब कुछ वही है, मिर्ज़ाइयों की तरह। तो आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करें कि ये मतलब नज़ीर साहब जो हैं, अहमद नज़ीर साहब, मुझे बहुत सख्त अफसोस हुआ क्योंकि ये उन लोगों में शामिल थे जिनकी मैं इज्जत करता था साल हर साल से। लेकिन वो दूसरा तो शैतान है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वो मुसलमान नहीं है। और ये मेरा फतवा नहीं है, बल्कि हर शख्स जो उससे बात करेगा उसकी बात सुनेगा। और कुरान पाक इस बात की मनाही करता है, और ये मैं बार बार आयत पढ़ के सुनाता हूं लोगों को, कि उन लोगों के पास मत बैठो जो कुरानी आयत का इस्तेहज़ा करते हैं। कादियानी हर वक्त हर लहजा कुरान का इस्तेहज़ा करता है, उसको तोड़ मरोड़ कर बयान करता है। तौहीन कुरान जितनी मिर्ज़े कादियानी ने की, किसी ने नहीं की। ये लोग उनको साथ बिठा के ठट्ठा करते हैं इस्लाम के साथ। तो आप खुद ही अपना फैसला दे दें, जैसा मेरा है। मैंने आपको बता दिया कि हमारे कम से कम मेरी नज़र में तो इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। ये खुदा ताला के और उनके दरमियान है कि खुदा ताला उनसे क्या सलूक करता है। लेकिन हम ऐसे आदमी को करीब नहीं आने देंगे जो मोमिनों के दरमियान तफरीक करता है और फिर फतवे देता है कि 30 साल पहले हमारे उलमा ने कहा था, तुम्हारे उलमा पर अल्लाह की लानत हो जिन्होंने ये कहा, और वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। क्योंकि कुरान मना करता है तफरीकम बैनल मोमिनीन से, और जो तफरीक करने वाले हैं उनके बारे में कहता है उनकी जमीन में वला तकुम फी है आबादा, तुम कभी भी उनके करीब ना जाना, और जो उनकी जगह है वहां पर कदम भी ना रखना। यह आयत नाजिल हुई अबू अमीर की, जो उसने मस्जिद बनाई थी, मस्जिदन ज़रारम व कुफ्रम व तफरीकम बैनल मोमिन। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको इल्म है कि आपके रब की रजा क्या है, तो आपके किसकी साइड पर जाना चाहेंगे? अगर तो ये लोग हमारी मौत को रोक सकते हैं या हमें अपने रब के हुजूर कभी हाजिर नहीं होना है, तो फिर हम इन्हें मान लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये यकीन है कि हमें अपने रब के हुजूर हाजिर होना है, तो मैं तो वही करूंगा जिसका हुक्म मेरा रब देता है। मेरा रब मुझे इनसे मिलने, इनसे बात करने से मना करता है। और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत मुझे लाकर दिखा दे कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने, ताबीन ने या तबा ताबीन ने इस किस्म की बातें करने वाले मुनाफिकीन, जिंदीकीन और उनके साथियों से कभी भी कोई इस तरह की गुफ्तगू की हो, इसकी ना इजाजत है। लेकिन हम तो इन्हें ऐसा नहीं समझते थे, खासतौर पर आमिर साहब, नज़ीर साहब को मैं कभी, लेकिन वो तो उनकी बातें सुन के मुझे पता लगा। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? क्या उन लोगों के साथ जाके कहूं ठीक है तुम मुसलमानों में तो फर्का डालते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप बताएं उस्मान साहब, क्या ऐसा करना चाहिए? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, आप करें जो आपने हाँ, बस हम तो इतना करते हैं, हम इनसे अलग हो गए हैं, तो हम अपने रब की रजा की खातिर। आप क्या इस चीज को जायज समझते हैं, तस्वीरें लगा के गालियां देना, आप इसको भी इंडोर्स करेंगे? नहीं, देखें बात सुने, इसमें ये भी सुन ले, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मुझे एक फतवा ला दें कहीं से कि गालियां जो देता है उस पर इस्लाम से बाहर होने का फतवा लगता है, तो मैं फिर इसके खिलाफ हो जाऊं। मतलब देखें, मेरी इसमें कुछ नहीं है, मैं तो नहीं ऐसा करता। और दूसरी बात जो है, अगर कोई आदमी
किसी शख्स के बारे में बताता है तो ये तो हमें सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम की जिंदगी से मिलता है। अबू उमीर के बारे में सबको बताया गया, उसकी फोटो अगर होती तो मैं कहता हूं फोटोआं की सब कुछ टंगया होता, ठीक है, जिसकी और वो हालत उसकी ये अबू उमीर की हो गई थी कि वो फरार होके मक्का चले गए, क्योंकि उसे पता था वो मुनाफिक था। वहां जाके उसने ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो उन्हें धोखा दे रहा था। वाइजा खलाउ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, ये इसकी तस्वीर बन गया वो। तो बात ये है कि हम मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन गालियां देने से नहीं देनी चाहिए। अभी मुझे शाह साहब ने कहा कि उन्होंने मुझसे कभी गाली, हाँ मैं कुत्ता कहता हूं किसी को, मतलब हालांकि वो एक वफादार जानवर है और कादियानियों से बेहतर भी होता है, और कभी ऐसी नफरत पैदा होती है। लेकिन ये ठीक है, गाली देने से आदमी ना काफिर होता है ना कुछ होता है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है, देनी नहीं चाहिए। मतलब इखलाक हसना इंसान का असासा है। लेकिन अगर कोई ये मुझे बात बता दे या सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कर दे कि अगर कोई शख्स किसी को गाली देता है और उससे आपको ताल्लुक तोड़ लेना चाहिए, तो हम सबसे पहले तोड़ लेंगे। ऐसा है ही कहीं नहीं है। हाँ, इखलाक की बात है, उसकी सजा हो सकती है, उस पर सरजनश हो सकती है। 40 कोड़े सजा है किसी मुसलमान की। नहीं, मैंने तो आपसे पहले अर्ज कर दिया। अच्छा, माजरत चाहता हूँ उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि तस्वीर लगाकर गाली देना। एक मिनट, मैंने शाह साहब से बस फैसला लेना था, वो एक मिनट मेरी बात सुन ले, सिर्फ मेरी बात का जवाब दे दे, ठीक है सर जी? मैं आपकी कोई बात का जवाब नहीं दूंगा, आई एम वेरी सॉरी। मैंने शाह साहब से बात करनी थी और शाहिद साहब से बात करनी थी, वो मेरी हो गई है। हाँ, नहीं, आप गाली की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तस्वीर लगाकर गाली देना मना है, और अगर बगैर तस्वीर के दो वो हलाल है। जो आधा घंटा पहले वहाँ पे सब कुछ हो रहा था वो हलाल था। अच्छी बात नहीं है, वो अभी गोंगलों से मिट्टी झाड़ी जा रही है ना। अच्छा छोड़े वो सारी, छोड़ दे बातें। मुझे उस्मान ये बता, अगर मैं इस शख्स को गालियां दे रहा हूँ, क्या मैं अपनी जाती है ना के लिए दे रहा हूँ? ये आप जानते हो, आपका रब जानता है और आप जानते हैं। मेरा मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है और दुनिया भी जानती है। मैं तस्लीम करूंगा, आप जो कहेंगे अगर उस्मान देखो, यहाँ पे मेरा कसूल है, आप इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हो, किसी से आपने बदतमीजी नहीं की, राइट? बात कर रहे हैं ना जी जी। यहाँ पर मर्ज़ई भी आते हैं, ये नहीं कि मुसलमानों के लिए ये जगह है, यहाँ पर मर्ज़ई भी आते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले ये तय किया जाता है कि तुम मिर्जे को मिर्जा साहब बोलोगे, इसके आगे कुछ नहीं बोलोगे, ये सबसे पहला। दूसरा, यहाँ पर कुरान और हदीस पे बात नहीं होती, ये डॉक्टर साहब इस चीज़ के गवाह हैं, ठीक है? यहाँ पर मेरा कीदा नबूवत नमूस रसालत पर ये मर्ज़इयों से बात करना, मिर्ज़े को इंसान का बच्चा साबित कर दो उनकी किताबों से, हम तुमसे कुरान और हदीस हर चीज़ पे, हर मौजू पे बात कर सकते हैं। ये है खत्म नबूवत का असली। अगर मर्ज़इयत को अया करना है, वो सबसे बेहतर तरीका अल्हम्दुलिल्लाह वो है मिर्ज़े की किताबें। और यहाँ पर अपने आज की बात बताता हूँ मैं, उस्मान ने गालियाँ निकाली, ज़िया रसूल ने गालियाँ निकाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ना था कि उस हबीस के बच्चे को नीचे उतारते, गुस्ताही होने ना देते। क्यों नहीं उतारा उसको नीचे? तुम ज़िया रसूल उसको गाली दे रहा है, that doesn't make any sense. That makes sense कि एक बंदा गुस्ताही पे गुस्ताही कर रहा है और तुम मेरी ब्रॉड पे बैठ के कर रहा है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। इसका जिम्मेदार मैं हूं कि मैं उस शख्स को इजाजत दे रहा हूं कि तू गुस्ताही कर, क्योंकि ये इस शख्स के अल्फाज हैं कि शातमियत वातमियत कोई नहीं होती, ये उनके एक कायद हैं। अगर कोई करता है तो करने दो। क्यों भाई? अगर अब मैं तुझे गाली दे रहा हूं तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? कोई मजाइका तो नहीं होना चाहिए ना। तू अपनी ब्रॉड कर रहा है, कर, मैं अपनी कर रहा हूं, मैं अपनी करूंगा, क्योंकि मजाइके की बात है। मेरे जब इस्लाम की बात होगी ना, तो यहाँ पर अगर मेरा सगा भाई भी होगा ना, उसकी भी तस्वीर लगा के इसी तरह इससे शायद बदतर सलूक करूं। तो ये एक बंदे की जातियत की बात नहीं है, और यहाँ पर 50 बंदे सुन रहे हैं, और जिस तरह से ये मर्ज़इयत नवाजी कर रहा है, जिस तरह से ईद मुबारक कही जा रही है उनको, ईद मुबारक जी, अस्सलाम वालेकुम, तो ये थे वो, व्हाट्सएप पे जो गुस्ताखियाँ और कॉन्टेक्ट्स रखे जा रहे हैं,
یہ سب ساری دنیا کو پتہ ہے، ریکارڈڈ ہے. سننا چاہتے ہو میں ابھی سنا دیتا ہوں. ایسا بیٹری رہ گئی 5% تو میں زیادہ چاہوں گا. ہاں بس ٹھیک ہے. باقی میں جو کرنا نا پہ منو پتہ ہے، میرا رب جاندا ہے. ٹھیک ہے. 54 بندے نے 54 بندے اتنے بیٹھے نے. ٹھیک ہے. کوئی بندہ بھی مینوں سوال پوچھ سکتا ہے کہ میں کیوں ٹنگیا دا. تم ہی چاہ کے پوچھے تینوں ایکسپلینیشن دیتی ہے. شاہد بھائی ایک چھوٹی سی گل کرنا چاہنا عثمان بھائی، جدو اولیاء کرام تے کوئی گستاخی کرے نا، وہ چاہے کسی بھی مسلک دا ہو، گل صرف اتوں تک نہیں، بڑی حد تک انہوں نے گل ودا دیتی ہے. بالکل تسی صحیح کہندے پے ہو. گل جڑی سی رک جاندی 2-3 دن پہلاں تے بہت اچھا سی. گل ہن بہت اگے چلی گئی ہے تے غوث کتب ابدال بڑی وڈی چیز ہے، بڑے وڈے قابلین ساڈے واسطے. ہو اس بندے نے انہوں نے گالیاں کڈیاں، جنہوں نے اپنی سلام دی خاطر جانا قربان کیتیاں، انہوں نے انہوں نے گالیاں کڈیاں. اس بندے نے صرف کی کادی بغض دے وچ، صرف اور صرف اس بغض دے وچ. یار امر ایک سیکنڈ یار، سارے تھلے لکھو کیا شاہد دی فوٹو لا کے گالاں کڈدا پیا، انسان دا پتر بنان دی کوشش کردا پیا. شاہد غلط کردا صحیح کردا. پلیز 60 بندے ہو دسیو ذرا منو بھی تاکہ پول کرا لو کہ تصویراں لانی چاہیے کہ نہیں لانی چاہیے. تسی پول کرا لو تصویراں لانی چاہیے نے کہ نہیں لانی چاہیے، آپ ہی تانوں فیصلہ لب جائے گا. چھڈو باقی پول وچ پاؤ اتنے پول تے جو فیصلہ آئے گا جے وہ کرد رہا جے. جڑے بھراواں دا فیصلہ آئے نا پنچایت دا وہ تسی کنٹینیو کتنا لگدا ہے. پول کتنا لگدا من تے بھی نہیں پتا. پول کتنا لگدا لائیں یار کوئی موئے مارڈینیٹر. شاہد صاحب گل سنو، جتھے قرآن و حدیث آ جاوے اتنے کہڑے پولاں دی ضرورت رہ جاندی ہے یار. بس کرو رہن دیو پول چھول کو نہیں اوکے شاہد بھائی ذرا پول دانیل پول لا 2 منٹ دا پول لائی دی. گل جدو عاشق رسول کہتے نا، غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. جدو اسی یہ نعرہ لاندے ہیں نا تو پھر ساڈے وچ یہ جذبہ ہونا چاہیے. گجر نے لکھے ہی تلے لگانی چاہیے نے. انہاں نو بے نقاب کرو سارے. ذرا پول لا دانیل پول لا کوئی. آیا گجرا پول شاید صاحب تسی لانا ہے کہ میرے کول ایتھے نہیں آپشن پہ آوندا پول دا. اچھا امن نو کنے بڑا شاید بھائی میں ذرا ایک کام ہے اس کے بعد گھر جاتا ہوں، تو ویسے ہی میں آ گیا. میں نے کہا کہ بڑی ہارڈ ڈبیٹ چل رہی. ڈاکٹر صاحب آپ آیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادہ زبان میں سمجھا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں جتنے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس بات کو غور کریں جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. تھینک یو ویری مچ جی. اوکے اچھا امن نو وڈا کنے کیتا سی جی؟ ذلی بروزی وڈے ہوئے سر. نہیں امن نو وڈا کنے کیتا سی یار؟ منو جنوں کوئی بندہ ہون گے بھائی جان، بندہ جنوں اونوں 2 وقت دی سوری ایک دوسرے دی سالن نہیں ملدا تے تسی اونوں وڈا کر چھڑیا. شاید بھائی ایسا نہیں کرتے. عامر بھائی ہمارے دوست ہے نا، انہوں آ میں سالن ونڈنا، میں سالن منو دین والا کوئی نہیں، میں آپو پکا دینا. شاہد بھائی یہ کہہ رہے ہیں جی گالی باز. آدھا گھنٹہ پہلے ادھر جو کچھ ہو رہا تھا نا تو وہ کیا لطیفے سنائے جا رہے تھے. اسکانی صاحب ساتھ بکواس کر رہے تھے، عامر اوپر بیٹھا بھونک رہا تھا. یہ لطیفے تھے، یہ گالیاں نہیں تھیں. سر میرے کول کوئی آپشن نہیں آ رہا پول لاؤن دا. میں چیک کر بیٹھا تسی لانا. کیوں نہیں آندا بھائی یار؟ نہیں آ رہا نا میرے کول آپشن نہیں شو رہا. نہیں سمجھ لگ رہی تو 11 بائی تے فون کر کے نا انہوں نے دسو کہ بول لاؤنا. ایمبولینس بلا لو دے وچ آون گے تو آ کے سمجھا جان گے چیز لانا. ہے گجر کہہ رہے ہیں منافق کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو بالکل درست بات ہے بھائی. نہیں صحیح گل ہے جی. دیکھو دیگ دا ایک ہی دانا ٹوئی دے، سارے دانے شاید صاحب نہیں ٹوئی دے. مور لگا سڑی ہے تے دے رہو ٹھیک ہے. دانیال ہن چیک کراں ذرا. نہیں دیکھنے خرم صاحب پتہ کی گل ہے، بندے دی اوپینین بھی لینی چاہیے. اچھی گل ہے جڑے سانو سنتے نے پتہ لگے کنا رائٹ اور رانگ. اے امن نذیر دی لائف نہیں ہے. تھلے اتر تینوں بلاک کر چھڑاں گا میں. خبردار میری لائف ول دھیان کیتا. ماما کنڈی لا لے نہ تیرے گھر کے بندہ بڑے. دانیال ہن آندا پیا
ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਪੋਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲੀਓ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼। ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਵਾਲਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗੁੱਜਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਨਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਰ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ ਥੱਲੇ ਐਗਰੀ 100%। ਬਾਬਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪਰ ਪੋਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਦਵੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੋ ਯੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੋ ਨੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਐਗਰੀ। ਮੌਲਵੀਓ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ? ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਲਿਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੌਸੀਫ ਅਵਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੋ ਥੱਲੇ ਯੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਾਕਾ ਸਪਾਈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਨਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜੇ। ਏਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚ ਕਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਸਵੇ ਕੋਨੀ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ਜੇ ਲੱਗੇ ਅੱਜ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਆਪੋ। ਯਾ ਸੋਨੇ ਸਜਾ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਈ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੋਕਿਆ ਨਾਦਰੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ